Dear student, now welcome to Fajandar High School and Junior College, Vahur. We are going to study the method of preparation of alcohol, phenol and ether. Now in last 3 video lectures, we have discussed what is alcohol, what is phenol, what is ether and how it is classified. Then some common and IUPAC nomenclature of alcohol, phenol and ether. Now from today onwards we are going to start method of preparation of alcohol. आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सिर्फ एक पार्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. एंड नाउ इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर we will discuss how to prepare phenol and ether, means method of preparation of ether and phenol. तो मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ मेथड ऑफ preparation of alcohol. Actually there are different methods by which alcohol can be prepared. Few methods are given by which alcohol can be prepared. Okay, now first method which is given, that is hydrolysis of alkyl halide. Already we have studied in case of halogen derivative of alkane, hydrolysis of alkyl halide. A simple method is given. Now second method, hydroboration of alkene. Second method to prepare alcohol is hydroboration of alkene. Now third method, acid catalyzed hydration of alkene. Third preparation method is given, acid catalyzed hydration of alkene. Acid catalyzed hydration of alkene. And the last preparation method, reduction of carbonyl compound. Last preparation method is reduction of carbonyl compound. Now what is carbonyl compound? What are the different types of carbonyl compound? Each and every point we will discuss in detail. So these are the few methods by which alcohol can be prepared. अब इसके अलावा एक और मेथड दिया हुआ है by oxymercuration and demercuration. एक लास्ट ऑल्सो जब अपन वो रिवाइज करेंगे पूरा होल टॉपिक, उस वक्त मैं आपको मेथड बताऊंगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन टू प्रिपेयर द अल्कोहल. सो नाउ दीज आर द 4 मेथड्स बाय विच अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड. हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हालाइड, सेकेंड वन इज योर हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन, third one acid catalyzed hydration of alkene, and last one is your reduction of carbonyl compounds. Now in this method one mechanism is also given, and that is related to acid catalyzed hydration of alkene. One mechanism is also given. So one by one we will try to start. Now our first method by which alcohol can be prepared, that is hydrolysis of alkyl halide. First and simple method, hydrolysis of alkyl halide. In case of hydrolysis of alkyl halide, simple, what is alkyl group? Now alkyl group means we can say R, ethyl, methyl, propyl, N-propyl, sec-propyl, N-butyl, isobutyl, and halide means X. So what is alkyl halide? Alkyl halide is Rx, and this X may be, यहाँ पर X क्या हो सकता है? This X may be Cl Br I. This X may be Cl Br or I. So CH3Cl methyl chloride, C2H5Br ethyl bromide. So this is the example of alkyl halides. Okay. Now so here in case of hydrolysis, our first point, alkyl halide Rx can be hydrolyzed. It can be hydrolyzed by aqueous alkali. हाइड्रोलिसिस के लिए क्या यूज करेंगे अपन? aqueous alkali. अब aqua का मतलब रहता है वाटर, एंड अल्कली, दिस अल्कली मतलब आइदर NaOH और KOH. अल्कली का मीनिंग क्या होता है? NaOH और KOH. सो डायरेक्टली आई एम राइटिंग हेयर NaOH. ओके, aqueous alkali I am writing here NaOH. Now this one is your alkyl halide Rx. Now first preparation method. Second, by using moist silver hydroxide. Second preparation method is given by using moist silver hydroxide. Now suppose here alkali is given. Now here alkyl halide is Rx.
Alkyl halide is RX. It react with alkali, either NaOH और KOH. सिंपल क्या होगा ये रिएक्शन में, सबको मालूम है, Na and X क्या रिमूव हो जाएगा, NaX and directly alkyl group attached to OH. So your product will be, आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, ROH plus NaX. ROH plus NaX. If moist silver hydroxide is given, this X and Ag, a precipitate will form. काय का precipitate बनेगा, AgX. A precipitate will form AgX, and this R attached to OH, and ROH, this is called as alcohol. ROH को अपन क्या बोलेंगे, alcohol. So this is a simple method by which one can easily prepare the alcohol. Hydrolysis of aqueous alkali and second hydrolysis by moist का मतलब रहता है wetted, गीला, which contain water, moisture, moist silver hydroxide. Now this pattern is given to prepare the alcohol. One by one we will try to cover few examples. Now suppose first example, here N-propyl chloride is given. First example, N-propyl chloride is given to you. Now, what is the structure of N-propyl chloride? Ab N-propyl chloride means CH3, CH2, CH2, Cl. Now, this is your N-propyl chloride. Now, here it react with aqueous KOH. It react with aqueous KOH. Now it undergoes hydrolysis. When it is boiled with aqueous KOH, it undergoes hydrolysis. आपको पता है क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से, K and Cl. A KCl will eliminate and your product will be CH3, CH2, CH2 single bond OH. Very good. Your product क्या है आपका प्रोडक्ट, CH3, CH2, CH2 single bond OH plus KCl, and now this product is called as N-propyl alcohol. What is the name of this product? It is called as N-propyl alcohol. Only Cl, it is substituted by OH, and it is the best example of substitution reaction. क्या की एग्जाम्पल है, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. ये कौन से रिएक्शन है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. नाउ सपोज आई हैव टू प्रिपेयर हेयर, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू प्रिपेयर हेयर isobutyl chloride, isobutyl alcohol. Yes, what we have to prepare, isobutyl alcohol. Now butyl means 4 carbon. Iso means methyl group attached to carbon number 2. So what is isobutyl alcohol? CH3, CH, CH3 single bond, CH2 single bond OH. Now this one is your isobutyl alcohol. This one is your isobutyl alcohol. Now how to prepare isobutyl alcohol? By using alkyl hydrolysis of alkyl halide. अब मैं कैसा प्रिपेयर करूंगा isobutyl alcohol? By hydrolysis of alkyl halide. मुझे पता है this is the example of substitution reaction. और यहाँ अपन ने देखे Cl की जगह क्या आता है, OH. ओके, प्रोडक्ट इज गिवन, आई हैव टू राइट द रिएक्टेंट, तो मैं यहां पर OH की जगह क्या लूंगा, Cl. मीन्स माय रिएक्टेंट विल बी CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, एनी हालाइट Br यूज्ड हियर aqueous NaOH, KOH और moist silver hydroxide. Okay, moist silver hydroxide. Now here Ag and Br, elimination of, क्या eliminate हो जाएगा, AgBr. Ag and Br, a removal of AgBr, and likewise your alkyl halide can be converted into alcohol. Alkyl halides can be converted into alcohol. So for hydrolysis we can use here aqueous alkali. आप लोग NaOH यूज करो या KOH यूज करो, और we can also use here moist silver hydroxide, that is AgOH. Now this is the first and simple preparation method of alcohol, that is hydrolysis of alkyl halide. You can take different examples also. Suppose I have to prepare here ethyl alcohol. Now ethyl alcohol is here CH3, CH2,
OH. This one is your ethyl alcohol, CH3 CH2OH. How to prepare ethyl alcohol? कैसा prepare करूंगा मैं ethyl alcohol? So now here use ethyl chloride या ethyl bromide. Okay, it will react with aqueous alkali, either NaOH और KH. Now aqueous इसके लिए लिखते AQ. एक्वियस के लिए क्या लिखते हैं AQ. लाइकवाइज हियर वी कैन से K एंड Cl क्या रिमूव हो जाएगा KCl एंड वी विल गेट हियर अल्कोहल. नाउ दिस इज द फर्स्ट एंड सिंपल प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, दैट इज बाय यूजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हालाइड एंड इट इज द एग्जांपल ऑफ काय का एग्जांपल है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. लेट मी इन्फॉर्म वन पॉइंट है स्टूडेंट, ये पॉइंट अच्छे से नोट डाउन करो, आपके एमसीक्यूज और एंट्रेंस एग्जाम में काम आएगा. नाउ रिपीटेडली आई हैव यूज वन वर्ड, मैंने कंटिन्यूअसली एक सेंटेंस मेरा रिपीट किया हूं, एक्वियस एक्वियस एक्वियस. अगर यहां पर एक्वियस अल्कली रहा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है. ओके अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन किसको बोलेंगे कि भाई X इट इज रिप्लेस्ड बाय OH. One atom is replaced by another atom, one group is replaced by another group, and that is called as the substitution reaction. लेकिन अगर उसने मुझे एक्वियस के बजाय जो अपने यहाँ अल्कली यूज किए, एक्वियस अल्कली, ओके, उसने मुझे अल्कली दिया, लेकिन एक्वियस अल्कली के बजाय उसने मुझे अल्कोहलिक अल्कली दिया. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर, सी हियर आई एम गोइंग टू राइटिंग हियर. नाउ instead of aqueous alkali, suppose alcoholic alkali is given to you, CH3 CH2 Br and arrow here NaOH, heat, okay, and alcoholic alkali. See here, क्लियर कट याद रखो, क्लियर कट. यहां आपने क्या यूज किए थे एक्वियस, हेयर वी आर यूजिंग अल्कोहलिक. अब अगर उसने मुझे अल्कोहलिक अल्कली दिया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा क्या? नो, यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा. हेयर द रिएक्शन विल बी एलिमिनेशन. यस डेफिनेटली हेयर the reaction will be, which reaction will take place here? The reaction will be elimination reaction. Okay, and what is elimination reaction? So the reaction in which atom or group of atom is eliminate. So here this one is my carbon number 1, this one is my carbon number 2. So carbon number 1 से क्या eliminate होगा? Br, and carbon number 2 से H. From here H, and from here Br. HBr will eliminate, and this CH3 will convert into CH2. Single bond will convert into double bond, okay, and CH2Br will convert into CH2. Now this is the elimination reaction. कब elimination reaction होगा? When alcoholic alkali is given. Note down this point. ये note down करो entrance exam के लिए. अगर उसने मुझे alcoholic alkali दिया, so the reaction will be elimination. And if aqueous alkali is given, the reaction will be substitution reaction. इसका by product आप लोग लिख सकते हैं. Now here Na and Br, a removal of क्या remove हो जाएगा? NaBr. See here Na and Br. अब यहां से 1H, यहां से क्या रिमूव होगा? 1H and OH, a removal of H2O. Removal of H2O. Now this is a difference between aqueous alkali and alcoholic alkali. Difference याद रखो. Aqueous alkali और alcoholic alkali का difference क्या आएगा? When aqueous alkali is used, AQ का मतलब रहता है aqueous, your reaction will be substitution, and when alcoholic alkali is given, your reaction will be elimination. और aqueous में क्या होगा? In aqueous alkyl halide convert into alcohol. In elimination, alkyl halide convert into alkene. Alkyl halide काय में convert होगा? Alkene. So this is the first simple method and the point which we have to remember for your entrance examination also. Now this point is given. So ये हो गया आपका first preparation method, that is preparation of alcohol from alkyl halide, hydrolysis of alkyl halide. Either it is aqueous alkali or it is moist silver hydroxide. Now note down this point. मैं वीडियो रफ कर रहा हूँ ब्लैक बोर्ड. नोट डाउन दिस पॉइंट. पॉज योर वीडियो को पॉज करो एंड नोट डाउन ईच एंड एवरी कंसेप्ट.
what is alkyl halide, how it is prepared. Okay, now our second preparation method, and was one of the best preparation method for alcohol, is acid catalyzed hydration. Acid catalyzed hydration of alkene. See here, एक एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगा. Our second preparation method for alcohol is given, that is acid catalyzed hydration. Acid catalyzed hydration of alkene. Now what is alkene? अब अगर आप लोग alkene देखेंगे, what is alkene? Alkene is carbon carbon double bond. What is alkene? Carbon carbon double bond. Now hydration, actually hydration, this word hydra, hydra का मीनिंग रहता water. What is the meaning of hydra? Water. और ये TION, शन, इसका मीनिंग रहता प्रोसेस. Yes, try to remember. Hydra का मीनिंग क्या होगा? Water, H2O, and शन, it meaning is process. Okay. Now acid catalyzed, catalyst का मीनिंग आपको पता है. Here acid act as a catalyst. और ये जो हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन. अल्कीन के दो कार्बन में अपन वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. एंड व्हाट विल बी द रोल ऑफ एसिड? दैट इज catalyst, and this reaction is called as acid catalyzed hydration of alkene. I am writing one example. Now see here, I am writing one example. Now in case of acid catalyzed hydration of alkene, now first case, take simple example, CH2 double bond CH2 plus use acid. Now we are using acid here, H2SO4. Now which acid we are using? H2SO4. अब H2SO4 में कितने हाइड्रोजन आइटम्स है? 2. How many oxygen? 4. How many sulfur? 1. Now the same thing I am writing like this, HOSO3H. Now 1 plus 1, 2 hydrogen atoms are there, sulfur. Now this O and O3, ये क्या हो जाएगा आपका? O4. Now both are sulfuric acid, so it is your sulfuric acid. ये क्या हो गया आप लोगों का? Sulfuric acid. And this reactant is your ethane. Your reactant is ethene. So acid catalyzed hydration of alkene. Now in case of acid catalyzed hydration of alkene, simple, it is the example of, ये है addition reaction का. Yes, it is the example of addition reaction. मतलब मैं क्या करूंगा, दो कार्बन के बीच में कोई भी दो ग्रुप या एटम को ऐड करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन. अब देखो कैसा एडिशन होगा. फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड H अटैच टू वन कार्बन and the remaining part OSO3H attached to another carbon. OSO3H कहाँ अटैच करूंगा मैं? Another carbon, and this double bond will convert into single bond. ये double bond काय में convert हो जाएगा? Single bond. Now this one is your CH2. ये क्या हो गया आप लोगों का? CH2. उसमें एक हाइड्रोजन आइटम अपन अटैच कर रहे हैं. So this CH2 will convert into CH3. Very good. That CH2 will convert into CH3. Now here double bond convert into single bond, then CH2. Okay, CH2. अब वो CH2 को अपन क्या अटैच करेंगे? OSO3H. Yes, what we will attach here? OSO3H. Now this part is alkyl part. ये पार्ट कौन सा हो गया? अल्किल. अब 2 कार्बन आइटम्स आर देयर, सो इट इज कॉल्ड एज इथाइल. अगर 2 कार्बन आइटम रहे तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इथाइल. नाउ दिस पार्ट इज हाइड्रोजन. ये पार्ट कौन सा हो गया? हाइड्रोजन. एंड रिमेनिंग पार्ट OSO3. अब OSO3 का मतलब रहता है SO4 एंड SO4 इज कॉल्ड एज सल्फेट. OSO3 का मतलब क्या रहता है? SO4. SO4 क्या बोलेंगे? सल्फेट. सो इट इज कॉल्ड एज इथिल हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फोन. इथिल हाइड्रोजन सल्फोन या इथिल हाइड्रोजन सल्फेट. ओके, सो व्हेन alkene react with acid, it will convert into
ethyl hydrogen sulfate and finally it undergoes hydrolysis. अब मैं इसको क्या करूंगा, हाइड्रोलिसिस करूंगा, मतलब it react with water molecule. हाइड्रोलिसिस का मतलब the addition of water. Okay, now water is your H2O. The same water we can write like this, HOH. Okay, अब ये रिएक्शन में क्या होगा, now this OSO3H और ये H देखो, OSO3H एंड दिस H और रिमूवल ऑफ क्या रिमूव हो जाएगा आप लोगों का, H2SO4. क्या रिमूव हो जाएगा वहां से, H2SO4. देखो ये H और ये H क्या बना, H2, ये SO3 और O4. नाउ हियर दिस पार्ट इज एलिमिनेट. Okay, now our remaining part is OH. Now OH attached here, मतलब OSO3H, it is replaced by OH. और ये OH कहाँ से आएगा, वाटर मॉलिक्यूल, एंड अपना प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2OH. Now likewise ethene convert into ethanol. Ethene convert into ethanol. Now this reaction is also given to you. Alkene convert into alkanol. Alkene काय में convert होगा, alkene convert into alkanol by acid catalyzed hydration of alkene. अब catalyst का आपको सबको मीनिंग पता है. catalyst अपन किसको बोलते हैं, which start the reaction without involving itself. मतलब वो रिएक्शन का रेट बढ़ा देगा, रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा, लेकिन वो उसमें इन्वॉल्व होगा क्या, नहीं. एट द एंड वैसे वो बाहर निकल जाएगा. आया बाहर H2SO4 वापस. यहां मैंने H2SO4 यूज किया था, इट एलिमिनेट लाइकवाइज. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन. टेक वन मोर एग्जांपल. नाउ सपोज आवर सेकंड एग्जांपल इज prop1ene. Now prop1ene, it is CH3 CH double bond CH2. Now this one is my carbon number 1, 2 and 3. Now total 3 carbon atoms are there, so it is a propane. ANE is replaced by ENE, so it is called as prop1ene or 1-propene. Okay, now it react with sulfuric acid HOSO3H. Now this one is your sulfuric acid. Here addition will take place across carbon-carbon double bond, means between carbon number 1 and carbon number 2. Okay, now when you will observe prop1ene, actually this one is your unsymmetrical alkene. ये जो prop1ene है, ये क्या है आप लोगों का, unsymmetrical alkene. And why it is called as unsymmetrical alkene? See here, now the carbon which carries double bond, जो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, see carbon number 1 and 2. Now carbon number 1, 2 hydrogen atoms attached, carbon number 2, 1 hydrogen atom is attached, so different hydrogen atoms are attached, it is called as unsymmetrical alkene. So when unsymmetrical alkene is given, addition will take place according to Markovnikov rule. Okay, and what is your Markovnikov rule? The negative part of reagent attached to that carbon which has less number of hydrogen atom. Negative part of reagent attached to that carbon which has less number of hydrogen atom. Now in case of sulfuric acid, when you will observe hydrogen, it is a positive charge carrying species, and the remaining part OSO3H, it is negative charge carrying species. Okay, so this negative part attached to that carbon, मैं नेगेटिव पार्ट वो कार्बन को अटैच करूंगा जिसके पास हाइड्रोजन आइटम कम रहेंगे. नाउ हेयर 2 हाइड्रोजन आइटम, हेयर 1, सो दिस OSO3H अटैच टू कार्बन नंबर 2 एंड H attached to carbon number 1, and double bond will convert into single bond. So this CH2 and 1H, this CH2 will convert into CH3. Okay, and CH attached there OSO3H, and this one is my intermediate. So what is my intermediate? See here, now this CH3 remain as it is, then CH, this part become OSO3H double bond convert into single bond, and CH2 convert into CH3. Now this intermediate is formed. What is the name of this intermediate? अब अपना pattern क्या था? Now this group is your alkyl group.
Okay, this one is hydrogen, and remaining part OSO3, actually OSO3 it is SO4, and SO4 it is called as sulfate. Now in alkyl group 3 carbon atoms are there, so it is called as propyl hydrogen sulfate. एंड नाउ अब प्रोपिल का कौन सा आइसोमर है? प्रोपिल के 2 आइसोमर्स है एक्चुअली, एन प्रोपिल एंड सेक या आइसोप्रोपिल. अब यहां पर जो सल्फेट ग्रुप है इट इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन, सो इट इज कॉल्ड एज सेक प्रोपिल. ओके, सेक प्रोपिल. H means hydrogen sulfone or hydrogen sulfate. Okay, it is called as sec propyl hydrogen sulfate, and this sec propyl hydrogen sulfate finally undergoes hydrolysis. अब मैं इसका क्या करूंगा? हाइड्रोलिसिस करूंगा. नाउ ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस दिस पार्ट OSO3H, दिस पार्ट रिप्लेस्ड बाय OH. अब ये जो पार्ट है OSO3H, इसको कौन रिप्लेस करेगा? OH, एंड दैट OH फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल. अब अगर वाटर मॉलिक्यूल के पास से मैंने यहाँ OH अटैच किया, सो व्हाट इज माय प्रोडक्ट? क्या आएगा मेरा प्रोडक्ट? CH3 CHOH CH3. ओके, नाउ दिस OH फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल. तो अब वाटर मॉलिक्यूल के पास बचा क्या? हाइड्रोजन एटम. Okay, hydrogen atom attached here. This hydrogen atom is already present. One more hydrogen atom from water molecule, so this become H2SO4, and in this way prop-1-ene convert into sec propyl alcohol. Prop-1-ene convert into sec propyl alcohol, or in case of propyl, sec and iso are same, so it is also called as isopropyl alcohol. So this is a second example of acid catalyzed hydration of alkene, and in which case alkene directly convert into alcohol through a intermediate, that is alkyl hydrogen sulfate. Okay, now pause your video and note down all this point. Now after that we will try to cover the mechanism of the reaction, acid catalyzed hydration mechanism. Actually what is the mechanism? अब मुझे मैकेनिज्म स्टडी करना है, तो मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? क्या स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल स्टडी ऑफ रिएक्शन, मीन्स हाउ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. मतलब वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसा कन्वर्ट हो रहा है, कितने स्टेप्स, एनी इंटरमीडिएट इज फॉर्म और नॉट. इंटरमीडिएट का मतलब रहता है कार्बोकैटायन, कार्बेनियन, फ्री रेडिकल, कार्बिन. सो हाउ दिस रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ मैकेनिज्म. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन. Hydration of alkene. Now first part, mechanism of hydration of alkene. Mechanism of hydration of alkene. Mechanism of hydration of alkene. Okay. Now in case of mechanism of hydration of alkene, a different steps are given. Now my first step by which alkene can be prepared, here first step is given formation of carbocation as an intermediate. Formation of intermediate, and कौन सा intermediate बनेगा यहाँ पर? कार्बोकेटायन. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट. अब कार्बोकेटायन का मतलब होता है कार्बन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज. नाउ सेकेंड स्टेप टू प्रिपेयर्ड अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक. एक एक पॉइंट मैं क्लियर करूंगा. न्यूक्लियोफिलिक अटैक टू कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन. ओके, अब कार्बोकेटायन मतलब C+. ओके, न्यूक्लियोफिलिक अटैक टू कार्बोकेटायन. एंड नाउ माय थर्ड स्टेप, मेरा थर्ड स्टेप है डीप्रोटोनेशन. मीनिंग बताऊंगा मैं. थर्ड स्टेप क्या है मेरा? elimination of H+ ion, yeah, it is called as deprotonation. So these are the three steps by which we can prepare the alcohol from alkene. Formation of carbocation, nucleophilic attack to carbocation,
एंड डीप्रोटोनेशन। अब देखो वी आर सेइंग एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। अब एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन का मतलब क्या रहता है कि वाटर पहले एसिड, अब एसिड आर्हेनियस के हिसाब से H+ आयंस, ओके तो वाटर H+ आयन से रिएक्ट करता और ये यहां बनाता हाइड्रोनियम आयन H3O+, एंड दिस H3O+ इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। ये H3O+ को अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन। तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ओके अब देखो मैं मैकेनिज्म स्टार्ट करता हूं ना। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, सी है ना, CH2 double bond CH2 and acid catalyzed water it is written as H3O+। कहां से आया ये H3O+? now this H3O+ from H2O and H+ आयन, कहां से आया ये H2O and H+ आयन। अब इसमें क्या होता कि जो H3O+ है इसका H+, इसका H+ एक कार्बन को अटैच करते हैं, इसका H+ क्या अटैच करते हैं, एक कार्बन को। अब अगर मैंने CH2 अटैच किया, दिस CH2 एंड H ये क्या बनाएगा, CH3। देखो CH2 एंड H इट विल फॉर्म CH3, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज योर CH2। इसका वैलेंसी कम हो रहा है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 है, उसने यहां एक बॉन्ड बनाया और 2 हाइड्रोजन आइटम अटैच है, मतलब वैलेंसी कितना हो गया, 3। इट विल कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज कॉल्ड एज कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, कार्बन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये H+ आयन कहां से आता है, फ्रॉम H3O+। H+ आयन कहां से आएगा, फ्रॉम H3O+। अब देखो H3O+, यहां से H+ आयन गया, मेरा रिमेनिंग पार्ट क्या आ जाएगा, H2O एंड दिस वाटर मॉलिक्यूल, यहां जो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रीच स्पीसीज। आप लोगों ने 11 में पढ़ा है, जिसके पास में भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लविंग या इलेक्ट्रॉन रीच स्पीसीज, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब ये सेम स्पीसीज राइट हियर, नाउ दिस वन इज योर CH3 CH2 carbocation plus H2O. Now this is your nucleophile, H2O act as a nucleophile। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकेटायन के जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उससे बॉन्ड बनाएगा। अटैक का मतलब होता है बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब वाटर के ऑक्सीजन और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, वाटर के ऑक्सीजन और इसके बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। ओके सो मेरा यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, सी है ना, CH3 देन CH2 देन OH2, क्या बनेगा यहां पर, OH2। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, यहां ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो जा रहा, 3, इसलिए उस पर ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके एंड नाउ माय लास्ट स्टेप, अब मुझे ये OH2 को OH में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, टू प्रिपेयर द अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो मुझे OH2 को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, OH में, मतलब मुझे यहां से एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। OH2 को अगर OH में कन्वर्ट करना है एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज D। अब D का मतलब रहता है रिमूवल, D का मतलब क्या रहता है, रिमूवल। नाउ दिस प्रोटॉन का मतलब रहता है H+ आयन एंड शन का मीनिंग रहता है प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच H+ आयन इज रिमूव। अब वो रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो इंटरमीडिएट बना राइट एज इट इज हेयर, राइट एज इट इज हेयर। नाउ दिस वन इज योर CH3 CH2 OH2, ऑक्सीजन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से सिर्फ एक H+ आयन अपन रिमूव करेंगे, और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, एलिमेंट। अब जैसे ही मैंने OH2 के पास से एक हाइड्रोजन निकाला तो ये OH2 काय में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। सो दिस बिकम CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH एंड लाइकवाइज अल्कीन कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, अल्कीन काय में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में। सी हियर अल्कीन कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। सो दिस आर द 3 स्टेप्स बाय विच वी कैन प्रिपेयर द अल्कोहल। ये 3 स्टेप्स है जिसमें अपन क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कीन पहले इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनाएगा एंड दैट कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट विल कन्वर्ट इनटू काय में कन्वर्ट होगा,
हाइड्रेशन में, हाइड्रेशन प्रोडक्ट में, एंड फिर वो हाइड्रेशन प्रोडक्ट में से अपन H+ आयन रिमूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डीप्रोटोनेशन. एंड लाइकवाइज द अल्कीन कैन बी कन्वर्ट इनटू अल्कोहल. नाउ दिस इज द सिंपल 3-step reaction we can prepare the alkene. Now pause your video and note down all points. Hydroboration of alkene. So our next preparation method is hydroboration of alkene. Now in this case, that alkene react with borane B2S6, okay, and it convert into trialkyl borate, which react with hydrogen peroxide and it form alcohol. Means in words we can write this reaction like this. फिर मैं reaction parts में आपको explain करूँगा. Alkene react with डाइबोरेन B2S6, लेकिन B2S6 को अपन लिखेंगे BH3 twice, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट एंड द सॉल्वेंट यूज इज THF. इट कन्वर्ट इनटू, ये कन्वर्ट होगा ट्राइअल्किल बोरेट में, एंड नाउ देन दिस ट्राइअल्किल बोरेट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली NaOH and it will form alcohol. It will form alcohol. Now this is the simple reaction by which we can prepare alcohol from alkene. Now student, I am writing the reaction. Alkene take ethene, CH2 double bond CH2. Now this one is here ethene. Ethene react with borane BH3 twice. ओके, इट कन्वर्ट इनटू, काय में कन्वर्ट होगा ये ट्राइअल्किल बोरेट में. एक्चुअली इन दिस रिएक्शन अगर आप लोग देखेंगे, सो योर बोरेन इज BH3. यस, योर बोरेन इज BH3. अब ये रिएक्शन में क्या होता है पता है, बोरेन का हाइड्रोजन अल्कीन ग्रुप के पास जाता है. बोरेन का हाइड्रोजन किसके पास जाता है, अल्कीन ग्रुप के पास में. अब मेरे पास में कितने हाइड्रोजन आइटम्स है, 3, तो अपन यहां पर अल्कीन कितने यूज करेंगे, 3. CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एंड हेयर आल्सो CH2 डबल बॉन्ड CH2. ओके, अब रिएक्शन में क्या होता है कि H अटैच टू दिस कार्बन, मतलब दिस CH2 और H ये बनाएगा CH3, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बनाएगा CH3 एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक. ओके, दिस हाइड्रोजन ट्रांसफर हेयर, और ये जो दूसरा CH2 रहता है वो B से बॉन्ड बनाता. मीन्स योर प्रोडक्ट इज लाइक, अगर आप लोग आपका प्रोडक्ट चेक करेंगे तो वो ऐसा आता, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. Okay, here also you can write double bond convert into single bond CH2 single bond CH3. इधर भी ये H कहाँ चले जाएगा, CH2 के पास में, ये CH2 कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड एंड दिस CH2 विल फॉर्म बॉन्ड विथ बोरेन. एंड नाउ दिस इज कॉल्ड एज ट्राइअल्किल. इसको बोलते हैं एक्चुअली ट्राइअल्किल बोरेट. ये क्या हो गया आप लोगों का, ट्राइअल्किल बोरेट. लेकिन BH3 मैं टॉइस ले रहा हूं, एक BH3 रिक्वायर्ड 3 अल्कीन, सो 2 BH3 रिक्वायर्ड 6 अल्कीन, और जो ट्राइअल्किल बोरेट बनेंगे वो भी यहां पर 2 बनेंगे. मीन्स योर प्रोडक्ट इज CH3 CH2 नाउ 3 times एंड अटैच देयर B. दिस इज योर ट्राइअल्किल बोरेट. B उसको कितने CH2 CH3 ग्रुप अटैच रहेंगे, 3. नाउ दिस इज योर ट्राइअल्किल बोरेट. अगर आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ट्राइअल्किल बोरेट. नाउ हियर 2 कार्बन आइटम्स आर देयर, सो इट इज कॉल्ड एज इथाइल. ट्राइइथाइल B मीन्स बोरेट. Okay, and this reaction will take place in presence of tetrahydrogen fluoride, and finally it react with alkali hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide in alkali. Okay, now forget this part. अब मेरे पास में कितने अल्किल ग्रुप बाकी है, 3. ओके, 3 अल्किल ग्रुप्स है, तो 3 अल्किल ग्रुप को अपन लिखेंगे 3CH3 CH2. ओके, CH3 CH2 कितने टाइम्स है, 3 मैंने लिखा. नाउ अटैच देयर OH, अटैच देयर OH. अब ये जो OH रहता वो आता फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से. वो OH कहां से आता, फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो यहां अपन टोटल हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करेंगे 3.
How many hydrogen peroxide we will use here? 3. And now my byproduct is, मेरा byproduct आ जाता BOH thrice. What is my byproduct? BOH thrice. मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अगर आप लोग देखेंगे तो एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के पास में 2 OH ग्रुप रहते हैं। एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के पास में कितने ग्रुप रहते हैं? 2, H2O2 मतलब 2 OH। अब अपन यहां पर ले रहे 3 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, 3 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कंटेनिंग 6 OH ग्रुप, और 6 में से 3 OH ग्रुप अटैच्ड हेयर, ये 3 OH ग्रुप मैंने अटैच किया, एंड रिमेनिंग 3 OH ग्रुप अटैच टू बोरेन, एंड लाइकवाइज अल्कीन ऑन हाइड्रोबोरेशन कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। अब simple reaction is given, alkene react with borane and it convert into trialkyl borate, trialkyl borate convert into alcohol. Now note down all this point, pause your video, note down all this point. Now student, we are going to start the last method, preparation of alcohol, that is reduction of carbonyl compound, and most important part for your entrance examination also. इसका कुछ पार्ट हम लोगों ने हेलो अल्केन में डिस्कस किया है। so what is my last preparation method? Last preparation method, that is by reduction of carbonyl compounds. Okay, now my first point, what is carbonyl compound? Reduction of carbonyl compound. Okay, अब what is carbonyl compound? Carbonyl compound means the compound which contain carbonyl group, और carbonyl group का मतलब रहता है C double bond O. Now this group is called as a carbonyl group. और ये जो carbonyl group रहता है वो 2 केसेस में रहता है, one is your aldehyde and second one is your ketone. अल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप रहता है और दूसरा कार्बोनिल ग्रुप किस में रहता है? कीटोन. नाउ द फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्डिहाइड इज, अगर मैं अल्डिहाइड देखूंगा सो अल्डिहाइड इज RC डबल बॉन्ड OH. अल्डिहाइड इज RC डबल बॉन्ड OH मीन्स कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ अल्किल ग्रुप अटैच रहेगा और दूसरे तरफ हाइड्रोजन. नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अल्डिहाइड. ये पार्ट को मैं क्या बोलूंगा? अल्डिहाइड. एंड कीटोन इज RC double bond OR means both side of carbonyl carbon alkyl groups are attached. carbonyl carbon के दोनों तरफ के अटैच रहेंगे alkyl group, that is called as ketone. और एक साइड में alkyl group और एक साइड में हाइड्रोजन, उसको अपन क्या बोलेंगे? aldehyde. So this is the difference between aldehyde and ketone. अब देखो रिडक्शन के लिए 2 पॉइंट यूज करते हैं यहां पर. नाउ फॉर रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन द रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड आर फर्स्ट हाइड्रोजन इन मेटल, हाइड्रोजन इन मेटल, एंड सेकेंड यूज इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. एंड कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं अपन? LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. विच रिड्यूसिंग एजेंट? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. और ये दोनों क्या करते? रिडक्शन करते अल्डिहाइड और कीटोन्स का. ओके, वन बाय वन वी विल स्टार्ट. नाउ माय फर्स्ट पॉइंट, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड. On reduction, aldehyde convert into primary alcohol and ketone convert into secondary alcohol. For example, I am writing here CH3 C double bond OH. CH3 C double bond OH. Now simultaneously we are going to cover both part. Suppose here the reducing agent given is hydrogen in Ni and heat. ओके, अब इसमें देखो H2, मेरे पास कितने हाइड्रोजन आइटम्स है? 2. नाउ हेयर O कन्वर्ट इनटू OH, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड. मतलब एक H2 का एक H अपन कहाँ अटैच करेंगे? ऑक्सीजन को. और H2 का दूसरा H अपन अटैच करेंगे C को. नाउ दिस इज योर CH. One more hydrogen we are adding means this CH convert into CH2. So here our product is CH3 CH2 single bond OH. Now this CH2 is the carbonyl carbon. ये जो CH2 है वो क्या है आप लोगों का? कार्बोनिल कार्बन. डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड. इफ आई एम यूजिंग हेयर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर मैं यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर रहा हूं तो इसके पास से हाइड्रोजन एटम निकलेगा.
दैट इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन एटम। कितने हाइड्रोजन एटम्स निकलेंगे यहां से? 2। ओके, 1 हाइड्रोजन एटम अटैच टू ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन एटम कहां अटैच करूंगा मैं? ऑक्सीजन। एंड सेकेंड हाइड्रोजन एटम अटैच टू कार्बोनिल कार्बन। 1 हाइड्रोजन एटम अटैच टू ऑक्सीजन एंड सेकेंड हाइड्रोजन एटम अटैच टू कार्बोनिल कार्बन। मतलब आपका प्रोडक्ट क्या आएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड। अब ये CH और ये H, तो ये हो जाएगा CH2। ओके, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये डबल बॉन्ड O कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड OH में। डबल बॉन्ड O कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड OH। नाउ हियर दिस अल्कोहल इज प्राइमरी अल्कोहल। आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल स्टडी किया है, नेचर ऑफ अल्कोहल यूज स्टडी किया है, तो ये अल्कोहल कौन सा हो गया आप लोगों का? प्राइमरी अल्कोहल। ओके, नाउ टेक नेक्स्ट एग्जांपल। Suppose CH3 C double bond O CH3. Okay, CH3 C double bond O CH3. Now here with respect to this carbonyl carbon, अगर मैं ये कार्बोनिल कार्बन देखूंगा तो दोनों तरफ इधर क्या अटैच्ड है? अल्किल ग्रुप है। सो इट इज द कीटोन। क्या क्या एग्जांपल हो गया ये? कीटोन। एंड नाउ दिस कीटोन इज कॉल्ड एज एसीटोन। ये कीटोन को अपन क्या बोलेंगे? एसीटोन। नाउ यूज हाइड्रोजन in metal and heat. Okay, likewise हाइड्रोजन एटम कितने मेरे पास में? 2। 1 हाइड्रोजन एटम अटैच टू ऑक्सीजन, सेकेंड हाइड्रोजन एटम अटैच टू कार्बोनिल कार्बन। 2 हाइड्रोजन को मैं कैसे एडिशन करूंगा? एक हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन को अटैच करेंगे, दूसरा हाइड्रोजन एटम कहां अटैच करेंगे? कार्बोनिल कार्बन। मींस आवर प्रोडक्ट इज CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब ये C है, उसको एक H अटैच किए, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। नाउ दिस 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम H2। अगर मैंने आपको यहां पर दिया हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये 2 हाइड्रोजन एटम देगा, सेम पैटर्न में एडिशन होगा। 1 हाइड्रोजन एटम अटैच टू ऑक्सीजन, सेकेंड हाइड्रोजन एटम अटैच टू कार्बोनिल कार्बन एंड आप लोगों का प्रोडक्ट आएगा CH3CH OH सिंगल बॉन्ड CH3। नाउ दिस अल्कोहल, अगर जो अल्कोहल का कार्बन मैंने सर्कल किया, ये कार्बन का अगर मैंने नेचर देखा, दिस कार्बन इज योर सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी कार्बन। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन? टू दिस कार्बन अनदर 2 कार्बन आइटम्स आर अटैच एंड दिस अल्कोहल इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अल्कोहल। ये अल्कोहल कौन सा हो जाएगा मेरा? सेकेंडरी अल्कोहल। सो दिस इज अ सिंपल मेथड बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। एंड रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में अपन क्या यूज करेंगे? हाइड्रोजन इन निकेल एंड सेकेंड वन इज योर lithium aluminum hydride. Okay, aldehyde convert into primary alcohol and ketone convert into secondary alcohol. aldehyde काय में convert होगा? primary alcohol and ketone it convert into secondary alcohol. Here hydrogen in nickel and lithium aluminum hydride both are a reducing agent. ये दोनों भी क्या है आप लोगों के? reducing agent है. Okay, so this is the fourth preparation method of alcohol, that is reduction of carbonyl compound. Pause your video और ये सब point note down करो, note down all points. Now see here student, we have used 2 reducing agent. One is your hydrogen gas in metal and second one is your lithium aluminum hydride. But what is the selectivity? देखो मेरा पॉइंट क्या है? व्हाट इज द सिलेक्टिविटी ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओरिएंटेड टू योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अपन डिस्कस कर रहे हैं सिलेक्टिविटी ऑफ LAH। अब LAH का मतलब रहता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या सिलेक्टिविटी रहेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट रिड्यूस ओनली कार्बोनिल कंपाउंड्स। याद रखो इसकी सिलेक्टिविटी क्या याद रखने का? इट रिड्यूस कार्बोनिल कार्बन। अब देखो मीनिंग क्या होता है? इट रिड्यूस कार्बोनिल कार्बन, इसका मतलब क्या रहेगा? क्या अनसैचुरेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इट डज नॉट रिड्यूस अनसैचुरेशन।
इट डज नॉट रिड्यूस अनसैचुरेशन, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का वो रिडक्शन करेगा क्या? नहीं. द अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड एंड कीटोन्स एग्जाम्पल में अपन कवर करेंगे. अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड एंड कीटोन कन्वर्ट इनटू अनसैचुरेटेड अल्कोहल. Unsaturated alcohol, that is the selectivity of लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. एक ही एग्जांपल में मैं ये तीनों पॉइंट कवर करने वाला हूं. क्या उसकी सिलेक्टिविटी याद रखेंगे? इट रिड्यूस ओनली कार्बोनिल कार्बन. अब वो कार्बोनिल कार्बन अल्डिहाइड कीटोन का रहने दो, वो कार्बोनिल कार्बन एसिड का रहने दो, वॉट एवर इट इज, ईस्टर का रहने दो. इट डज नॉट रिड्यूस, RED रेड नहीं होता यहां. RED का मतलब क्या होता है यहां पर? इट डज नॉट रिड्यूस, इट डज नॉट रिड्यूस अनसैचुरेटेड, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स आर अनअफेक्टेड. इट कन्वर्ट unsaturated aldehyde and ketone into unsaturated alcohol. For example, I am writing CH3 CH double bond CH C double bond OH. Now this part is given to you and I have written here lithium एल्यूमिनियम हाइड्राइड. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. अब अगर आप लोग ये एग्जांपल देखेंगे तो इसमें इसका भी डबल बॉन्ड हो, ये जो डबल बॉन्ड है इसका भी रिडक्शन हो सकता है. एंड डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, अल्कीन कन्वर्ट इनटू अल्केन, और यहां पर भी रिडक्शन होगा, इट कन्वर्ट इनटू अल्कोहल. लेकिन जब अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे तो दिस पार्ट बिकम अनअफेक्टेड, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एज इट इज रहेगा. सिर्फ ये अल्डिहाइड काय में कन्वर्ट होगा? अल्कोहल में. एंड अपना प्रोडक्ट क्या आएगा कि CH3 दिस CH3 ओके, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH. ओनली इट रिड्यूस अल्डिहाइडिक कार्बन. किसका रिडक्शन किया उसने? C डबल बॉन्ड OH को काय में कन्वर्ट किया? CH2 सिंगल बॉन्ड OH. मतलब अनसैचुरेटेड, मतलब ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे. अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड एंड कीटोन कन्वर्ट इनटू अनसैचुरेटेड अल्कोहल. यही अगर मैं हाइड्रोजन लेता, हाइड्रोजन इन निकेल, क्या लेते हैं अपन? हाइड्रोजन इन निकेल. नो डाउट वो इसका रिडक्शन करता, इसका भी रिडक्शन कर देता हूं. मतलब ये डबल बॉन्ड को काय में कन्वर्ट करता? सिंगल बॉन्ड. और आपका प्रोडक्ट क्या आता था? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH. CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH. and now this is the difference between reducing agent, reduction by using lithium aluminum hydride and reduction by using hydrogen in nickel. ये देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड रिमेन एज इट इज, यहां पर डबल बॉन्ड काय में कन्वर्ट हो रहा है? सिंगल बॉन्ड में. और ये डिफरेंस है बिटवीन रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन बाय यूजिंग हाइड्रोजन इन निकेल, एंड दैट इज कॉल्ड एज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन. इसको अपन क्या बोलेंगे? कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन. So this is all about the next preparation method, that is reduction of carbonyl compound. Now student, we can also prepare alcohol by reduction of carboxylic acid. मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से भी, पॉज योर वीडियो और ये सब पॉइंट्स लिख के रखो और एंट्रेंस एग्जाम में याद रखने का. अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रहा तो दिस डबल बॉन्ड रिमेन एज इट इज. ओके, नाउ पॉज योर वीडियो and note down all points. Now next preparation method is given, that is reduction of carboxylic acid. रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं. नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड इज गिवन टू यू CH3 CH2 C double bond O OH. Okay, now for reduction of carboxylic acid a strong reducing agent is required. मतलब यहां पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब LAH. वी विल यूज हेयर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. क्या यूज करेंगे अपन? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. वी कांट यूज हाइड्रोजन इन निकेल.
कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर मुझे रिडक्शन करने का रहा तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, और वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. वी कांट यूज हाइड्रोजन इन निकेल. अब अगर मैंने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या करता कि ये जो ग्रुप रहता C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप को वो कन्वर्ट करता CH2 में. कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट इनटू मैथिलीन ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप काय में कन्वर्ट होगा? कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट इनटू मैथिलीन. बाकी सब पार्ट एज इट इज रहेगा, सिर्फ C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट इनटू CH2 एंड आवर प्रोडक्ट विल बी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH. कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट इनटू CH2, C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट इनटू CH2. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हाइड्रोजन इन निकेल से मैं रिडक्शन कर सकता? नो. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. सपोज दिस स्ट्रक्चर इज गिवन टू यू. नाउ दिस स्ट्रक्चर इज गिवन टू यू. इट इज साइक्लोप्रोपेन. ये पार्ट क्या हो गया आप लोगों का? साइक्लोप्रोपेन. कार्बोक्सिलिक एसिड इज अटैच्ड हियर, सो इट इज कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या बोलेंगे अपन इसको? साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड. और एरो पर आपको दिया हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. इंस्टेड ऑफ LiAlH4 आई हैव गिवन LaH. अब इसमें क्या होगा कि सिर्फ ये जो पार्ट रहेगा C डबल बॉन्ड O, दैट इज CO, इट विल कन्वर्ट इनटू CH2. It will convert into CH2 and OH will remain as it is. It is called as cyclopropane methanol. methanol. Cyclopropane. Now this is your methanol. Okay, one carbon इसलिए methanol. और methanol को cyclopropane attached है, so that is called as your cyclopropane methanol. Only C double bond O convert into CH2. Okay, now my last preparation method by addition of Grignard reagent to carbonyl carbons. Addition of Grignard reagent, last preparation method is given. Addition of Grignard reagent to carbonyl compound. अब carbonyl compound means here aldehyde and ketone. Carbonyl compounds, aldehyde and ketone. Okay, addition of Grignard reagent to कार्बोनिल कंपाउंड. अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोगों ने हेलो अल्केन में स्टडी किया है. व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? अल्किल मैग्नीशियम हालाइट. अल्किल magnesium halide. Now this is called as Grignard reagent. And carbonyl compound means which contain carbonyl group, that is here aldehyde and ketones. It is called as carbonyl compound. और ये पार्ट सबको मालूम है. Now simple addition reaction is given to you. First I am taking here formaldehyde. The first aldehyde which we are using, जो अपन पहला aldehyde यूज कर रहे हैं वो कौन सा aldehyde यूज कर रहे हैं अपन? formaldehyde. Now your formaldehyde is HC double bond OH plus Grignard reagent use is methyl magnesium bromide. और जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे आप लोगों को पता है मेरा एरो कंडीशन क्या आता है? प्योर एंड ड्राई ईथर. Pure and dry ether. Now this is methyl magnesium bromide. This is formaldehyde. अब इसमें एडिशन कैसा होता है पता है? अल्किल ग्रुप अटैच टू कार्बोनिल कार्बन एंड MgBr अटैच टू ऑक्सीजन. मतलब ये CH3 किससे बॉन्ड बनाएगा? C से. और MgBr कहाँ अटैच करेंगे अपन? ऑक्सीजन. सो सी माई इंटरमीडिएट इज नाउ दिस इज योर CH2. ये आपका हो गया CH2 और CH2 के C को मैं क्या अटैच कर रहा हूं? CH3. सो दिस वन इज योर CH3 CH2 देन OMgBr. Okay, so ये जो CH3 है, this CH3 from Grignard reagent and then it undergoes hydrolysis, acid hydrolysis. अब इसका अपन आगे क्या करेंगे? acid hydrolysis. Only MgR is replaced by H. MgR is replaced by H and our product is CH3 CH2
OH प्लस साइड प्रोडक्ट आएगा MgBrOH। ओके, तो जब वाटर यूज करते हैं आप लोग HOH, तो H अटैच टू हेयर एंड MgBr अटैच टू OH, और ये वाटर कहां से आता? फ्रॉम H3O प्लस, एंड दिस इज अ सिंपल एडिशन रिएक्शन। एक बेसिक कंसेप्ट है, डोंट वेस्ट योर टाइम। नाउ सपोज एसिटाल्डिहाइड इज गिवन टू यू, मैंने आप लोगों को यहां पर एसिटाल्डिहाइड दिया हूं। नाउ एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिकनार्ड रिएजेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH plus CH3MgBr CH3MgCl. Now CH3MgCl, it is a Grignard reagent, so use here dry ether. कैसा एडिशन होगा? टेल मी फास्ट, कैसा एडिशन होगा? CH3 अटैच टू कार्बोनिल कार्बन, MgCl attached to oxygen. This CH3 remain as it is. So your intermediate will be, क्या है आपका intermediate? CH3 single bond CH, okay, CH3 single bond CH हो गया, ये CH। हाँ, अब ये C को अपन क्या अटैच कर रहे हैं? CH3, so this one is your CH3। हाँ, ये डबल बॉन्ड O काय में कन्वर्ट होगा? डबल बॉन्ड O कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड O MgCl। CH3 attached here, CH3 CH, CH3 single bond O MgCl, and now finally it undergoes hydrolysis, H3O plus. Now in hydrolysis MgCl is replaced by H, तो OMgCl काय में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में। Our product will be CH3CH OH CH3 plus MgCl OH plus MgCl OH. A simple reaction is given to you. Now take here example of acetone, that is the example of ketone. Now ketone given is CH3C double bond O CH3 plus CH3 MgCl. Now CH3 MgCl, it is my Grignard reagent, so we will use here pure and dry ether. क्या यूज करेंगे अपन? प्योर एंड ड्राई ईथर। अब इसमें भी एडिशन कैसा करेंगे अपन? CH3 अटैच टू कार्बोनिल कार्बन एंड MgCl अटैच टू ऑक्सीजन, दिस डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, CH3C CH3, नीचे एक आ जाएगा CH3, डबल बॉन्ड O काय में कन्वर्ट होगा? सिंगल बॉन्ड O MgCl, दिस इंटरमीडिएट विल फॉर्म CH3CO MgCl single bond CH3 single bond CH3. See here, only this CH3 group attached here, double bond O convert into OMgCl. Likewise the addition will take place, it undergoes acid hydrolysis. अब उसके बाद मैं इसका क्या करूंगा? acid hydrolysis, MgCl is replaced by H, बाकी प्रोडक्ट एज इट इज रहेगा। ओके, बाकी प्रोडक्ट क्या रहेगा आप लोगों का? एज इट इज, प्लस here byproduct will be MgClOH, byproduct क्या आ जाएगा आप लोगों का? MgClOH. Now this is a simple reaction of method of preparation of alcohol by addition of Grignard reagent. अब इसका एक सिलेक्टिविटी याद रखो, अगर मैंने फॉर्मल्डिहाइड लिया तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, formaldehyde, and any Grignard reagent our product will be primary alcohol. Then except formaldehyde, कोई भी aldehyde लो आप लोग, aldehyde containing more than one carbon or two carbon, जैसे ethanol, propanol, butanol, it will convert into secondary alcohol. And when ketone is used, ketone will convert into tertiary alcohol. Formaldehyde लिए primary alcohol, except formaldehyde, all aldehyde and Grignard reagent convert into secondary alcohol, and ketone and Grignard reagent convert into tertiary alcohol. That is the selectivity of this reaction. तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए Grignard reagent प्लस formaldehyde, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए Grignard reagent प्लस except formaldehyde, all aldehyde, and for tertiary alcohol use Grignard reagent and your ketone. So this is all about the method of preparation of alcohol. Hope you are getting this point. Now in next video lecture we will try to cover method of preparation of phenol and ether. Thank you. Note down all points.